the fun again. Fun again. Okay, let's turn the table again. Yes. टेबल तो लाओ मैडम. कन्ना दुनिया के सारे टेबल हिला दिए. I अभी भी know, तू कह I रही है know. टेबल और चाहिए नहीं, तुझे. मानती हूँ, मान रही हूँ. All righty. So, do we have someone today? Are we talking to someone today? Okay. मोनिका कहेगी मैं यहीं बैठी हूँ. हाँ. I'm here. Okay, so we have today Monica, who is life coach, Hi everyone. and we'll be talking about someone around whom our world revolves. So Something we can't live without. yes, Yes. हमारा क्या बोलेंगे उसको? जो बोलते हैं ना राजा की जान तोते में होती है. हाँ. और तो हमारी हमारा- जान उन्हीं में होती है. हमारे बच्चे. हाँ, हमारे तोते. सॉरी. खून कर देंगे वो हमारा अगर सुन लिया उन्होंने ये सब कुछ. ना all good. So I think parenting बहुत टची टॉपिक है और उनके इमोशंस और भी ज्यादा टची टॉपिक है. बहुत ठीक है, तो ज्यादा. टिश्यू लेके बैठना है. I think बैठ जाओ ज्यादा better है because I believe you guys are also parents. Yes. हाँ, Yeah. Yes. I think you should have something here. हम बड़े हाँ. चिल्ड आउट वाले पेरेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता चलो है. बढ़िया. हाँ, I hope so. Yeah. Good as well. हाँ, कभी ना हमारे बच्चों के साथ भी बैठना. Then you हाँ, know वो more. बताएंगे. नहीं, So good है. Monica, just please tell us something about you first, so we Okay. start something. Just before I get started, Yeah. I'd like to thank you both for inviting me. It's Thank actually you. a pleasure, and this topic is really close to my heart. मतलब जब मैं बच्चे सुनती हूँ ना तो I get tears I in my know. eyes. मदर बन जाती हूँ. Correct. And it is not about my kids; it's about anybody else's kids. Yeah, involved. all Yeah. the kids in the हाँ, world. तो Yeah. 100%. वो होता है मेरे को. So, okay, I'm a very simple person. I'm a banker by profession, but my passion is basically to help people. So I started my journey, I think last year when I started studying life coaching, Yep. just to understand people, just to understand their emotions and help them in such a way that, you know, they can actually see that light coming. Yep. Because I believe everybody is actually struggling these days. Hmm. So my passion is to basically turn strength or turn, you know, your challenges into Your your strength. strength. So you're also turning the table, baby. I Yes. I am into it. मैं यही करती हूँ, ठीक है? Well, That's why she's here. Exactly. No wonder. That's why Yeah, na? we thought that you will be a value addition and you will bring something to our audience. और मैं ना बहुत हाई बिलीवर हूँ. God ना सबके रास्ते में लाता है. There's a reason. Correct. There's a correct. reason why we all are sitting Correct. together That's here. true. ऐसे नहीं बैठते हैं हम लोग ना कि कोई किसी को भी ऐसे कैसे मिलके बात कर लेंगे. So there is a reason. Let's go deeper into it. Done deal. And I believe that as well. So I think we share the same mindset. इसीलिए यहाँ साथ में बैठे हैं. Yeah. Yeah. 100%. Okay. So To begin हाँ. with, so how what's the main issue? So what do you normally face when any family comes to you, or what kind of issues children face? Like the biggest issue I believe is obviously it is about the gap in the relationship. That's the biggest issue these days. Yeah. तुम लोगों को भी पता ही होगा कि हाँ. हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है. और सबसे बड़ा इशू मुझे जो दिखता है ना, इट इज नॉट अबाउट दैट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट बेचारे बच्चे जो है ना वो पिस रहे हैं. लेकिन nobody is actually thinking about them. Yep. So as a husband you're just thinking about your life. You just want to get rid of this lady. And the same goes with the lady. She just wants to get rid of this person. And nobody is actually thinking जो पैदा किया है उसके उसका बारे क्या में तो करना है. सोचो. हाँ. And I really feel sad about it. Yeah. तो सबसे पहले ना मैं तुमको ये बताती हूँ कि देख सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि देख वी आर टू बिजी इन बेसिकली गेटिंग दीज प्रॉपर्टीज, यू नो, गेटिंग अ ग्रोथ इन आवर जॉब एंड एवरीथिंग. बहुत बिजी हम लोग. पैसा कमाना है सबको, है ना? बट वो पैसा आप पहले किसके लिए कमा रहे हो? True. बच्चों के लिए. सब यही बोलेंगे. हाँ. आप भी यही बोलते होगे, आप भी यही बोलते होगे. बट जब वो बच्चा पहले इंसान बनेगा ही नहीं तो उस पैसे का करोगे क्या? क्योंकि आपका एक्चुअल एसेट तो वही है. एक्सेट तो वही है. हाँ. अगर उन्होंने आपने पहले से उनको टाइम ही नहीं दिया बच्चे को, करेक्ट. या उसको नॉलेज ही नहीं दी हाँ. टू ग्रोथ कैसे होना है, कैसा ह्यूमन बीइंग बनना है, how they will it will Correct. work. Yeah, I understand. Yeah. तो वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो मुझे लगता है कि एक बच्चे के ऊपर जो आप इन्वेस्ट करते हो ना, जैसे आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू. शेयर्स में डालते हो, इन्वेस्टमेंट फॉर यू. बच्चा इज योर एसेट. आप उसको जो इमोशनल प्रेजेंस देते हो ना, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट. दैट इज वेयर यू नीड टू इन्वेस्ट. बट अभी आज की डेट में क्या होता है, जो एक बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि पेरेंट्स फेस करते हैं. एक तो देखो वैसे जनरेशनल गैप होता है, ठीक है, ये रियल है. अब समझ आता है, अपने टाइम पे समझ Yeah, नहीं नहीं आता आता था, था. ठीक है, ये है.
ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जैसे वी आर अपरूटेड फ्रॉम इंडिया, हम्म हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सराउंडिंग्स बहुत डिफरेंट है, Correct. ठीक है, और इनको हम यहाँ पर एक बहुत ही कंटेन्ड एनवायरनमेंट में इनकी Unknown अपब्रिंगिंग landscape चल है रही इनके है, लिए, ठीक correct. है। हम्म और हमारे टाइम पे क्या था कि ठीक है, इतने सारे रिलेटिव्स होते थे, सब मिलके कहीं ना कहीं से बच्चों को प्यार मिल ही जाता था। यहाँ पर वो दो लोगों के आसपास उनकी जिंदगी घूम रही है, तो समटाइम्स वो अपना इमोशन एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो हाउ डू वी डील विद दैट सिचुएशन? they express emotion differently and we perceive it differently, Different. right? So how do we bridge that gap? चल तेरे को एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं तुम दोनों को। हम्म तो बेसिकली चलो हमारे बच्चे इंडिया से यहाँ पे आए हैं हाँ। एंड इंडिया में ऑब्वियसली वी हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, यहाँ पे डिफरेंट है, बट तुम्हें पता है ये जनरेशन से चल रहा है और हमें पता ही नहीं है। मतलब मैं अगर तुम लोगों से अभी सवाल पूछूंगी ना तो तुम एकदम अपने जब पास्ट में जाओगे ना रिलेट तब करो तुम्हें पता चलेगा कि आज जो तुम हो ना वो क्यों हो। तो इट्स वेरी डीप रूटेड। तो अपने पेरेंट्स से बात करो, वहाँ पे भी तुम्हें पता चलेगा कि उनके आज जो है वो क्यों हैं, उनके चैलेंजेस, पैटर्न सब पता लगेगा। तो इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग द कंट्री, इट इज अबाउट चेंजिंग योर माइंडसेट, दैट इज ऑल इट इज। तो मैं तेरे को एक सिनेरियो बताती हूँ, लाइक अपने बारे में ही बता देती हूँ। तो वी जस्ट टॉकिंग इन जनरल, राइट, आई जस्ट वांट टू शेयर इट। सो तो आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी who is to pretend that she is very strong emotionally. और कोई और भी मुझे देखता है तो उसको लगता है कि भैया ये तो झांसी की रानी है, खा जाएगी सबको। समझ रहे? Because I'm very straightforward, upfront. Fair enough. I used to feel that I don't have mass because we all carry mass. Yeah, we do 100%, and we have a different mask for every situation. Correct. तो अभी जैसे मैं तुम लोगों से मिली जी, तो मुझे नहीं पता, मेरे अनकॉन्शियस माइंड ने बोला एक मिनट पहले इनको समझो, मास्क ऑन, ठीक है, ओके। फिर जब मैं थोड़ी देर और बैठी तो मुझे लगा लोग तो मेरे जैसे लग रहे हैं, अच्छा, टेक इट आउट, चिल मार, जस्ट ब्रिंग योर ट्रू सेल्फ। तो वी हैव सो मेनी मास्क। तो पप्पू पास हो गया। पास हो गया। तो हर टाइम ना वो मास्क उठा के हम डालते रहते हैं ऐसे सर पे, ठीक है, मुंह पे, जो भी है, ठीक है। हम अपना ट्रू कलर्स किसी को नहीं दिखाते और मजे की बात है अपने आप को भी नहीं दिखाते। सबसे बड़ा पागल हम अपने आप को बनाते हैं, ठीक है। ओके। तो आई एम स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। जो बोलना है वो मुंह पे बोलूंगी, पीछे से कुछ नहीं बोलूंगी। मैं बहुत सोचा, मैंने यार ये मैं कर मतलब व्हाई आई एम लाइक दिस, लाइक क्यों? मतलब ऐसा तो होता होगा ना, कभी कभी मुझे भी दुख होता होगा, मेरे अंदर भी इमोशंस होते होंगे, बट हमेशा मैं मतलब सब कुछ फटफट फटफट फटफट, हाउ इज दैट पॉसिबल? गैप्स तो मेरे अंदर भी होगा। तो just to know myself, it actually took me 2 years. okay. And if I'll tell you my story, it is like, oh my god, it is massive. 1 year I studied only astrology just to know myself, सिर्फ मेरा चार्ट, अच्छा, कि who am I as a personality, ठीक है। Very deep. what are my karmas, like yeah. what should I be focusing on? एक साल रोज, ठीक है यार। कर्मा वाला चैप्टर तो मेरा भी इंटरेस्टिंग है। I I love knowing wonders of karma, how it works. There is a balance sheet, right? I know. We'll talk about it. हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप था कि ठीक है, बेस्ड ऑन माय चार्ट दीज आर माय गैप्स, नाउ हाउ टू रिमेडिएट इट। तो मैं अपने बेटे के साथ बैठी, बच्चों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ही इज 13 इयर्स ओल्ड एंड वेरी मैच्योर। तो मैंने उसको बोला कि देख मैं क्या करूं? तो उसने बोला यू शुड डू समथिंग, यू वेस्टिंग योर टाइम, सीधा मुंह पे। अच्छा। वो बात ना मुझे हिट कर गई। तो मैंने व्हाट शुड आई डू? कहता फॉलो योर पैशन। माय पैशन वाज टू हेल्प पीपल, एंड नाउ आई वांटेड टू स्टडी समथिंग। मैं क्या करूं, ये कोर्स करूं, ये पढ़ाई? उसने बोला अभी पे करो। अच्छा। तो ही वो जो है वो मेरे बगल में बैठा और मैंने उसी टाइम पे किया। मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं पूछा मुझे करना क्या है, आई जस्ट एनरोल्ड स्ट्रेट अवे। Very good. Nice. And you enjoying it? I'm loving it. I'm loving it. तो हम कहाँ थे कि कंट्री अलग अलग है, माइंडसेट्स अलग अलग है, उस पे मैं आती हूँ। तो क्वेश्चन था कि मैं ऐसी क्यों हूँ? तो मैं अपने पास्ट में गई। जब पास्ट में गई, सबसे पहले आप बचपन में लेके जाते हो। अगर मुझे आपकी पर्सनालिटी जाननी है ना तो मैं आपका बचपन पहले खुद दे दूंगी। अच्छा। क्योंकि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो जो बचपन के एक्सपीरियंस होते हैं ना, वही आपकी वो पर्सनालिटी बनती है। तब मुझे पता चला, एक वर्ड है, पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं, पैरेंटिफिकेशन। ओके, ठीक है। तो जब मेरे पेरेंट्स थे, तब गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन माय लाइफ। तो मैं बड़ी थी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताइए कि तुम बड़े हो, ये एक माइंडसेट है हमारे कल्चर में।
वो तो बचपन से ही बड़े हो जाते हाँ, हैं। वो बचपन से ही बड़े हो जाते हैं। तो हाँ। जब आप बचपन से ही बड़े हो जाते हो ना 8-9 साल से ही, आपकी इमोशन नीड्स कोई नहीं समझ रहा। बस पेरेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि ये बड़ा बच्चा है, ये हाँ सब संभाल लेगा, ये सब फिक्स कर देगा। जी, बट पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि बच्चा ये तो वो भी बच्चा है। बच्चा पर ये है। खुद भी तो हाँ। बच्चा है ना, इसके भी इमोशंस हैं, हाँ, हाँ, इसकी करेक्ट फीलिंग्स हैं। करेक्ट, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है ना अप अंटिल 18 इयर्स तक डेवलप नहीं होते। लाइक हम्म लॉजिकल वाले मैं बता रही हूँ, इमोशंस तो होते हैं बट वो लॉजिक डेवलप नहीं होता। हम्म इसीलिए 18 साल पे हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, हम्म क्योंकि तब तक हम बच्चे ही बच्चे होते ही हैं, होते क्योंकि इट इज डेवलपिंग। डिसीजन पावर नहीं होती ना तब तक इतनी। हम बड़ा हाँ समझते हैं पर हम बड़े होते होते नहीं नहीं है। हाँ और ट्रू। पता है मजे की बात है, आज तक हम बड़े नहीं हुए अभी इमोशनली और मेंटली, और हम अभी भी सीख ही रहे हैं। सीख ही रहे हैं हाँ। तो ये बड़ा बच्चा है, ये सब संभाल लेगा, ये करेगा ये करेगा, तो सब कुछ बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। ठीक है, जब आपके ऊपर बर्डन आता है ना, बस वो पैटर्न आपका शुरू हो जाता है। क्योंकि बचपन में आप ये नहीं सोचते कि वो सही है या गलत है, बिकॉज आप लॉजिकली ना तो आपको कोई समझाता है, ना आपको खुद समझ में आ रहा होता है। तो देयर आर सर्टेन बिहेवियर जहाँ, जैसे आप बताते हो कि आप परेशान हो, ये किसका रोल है? हु विल बी टेलिंग अस? पेरेंट्स। हम्म ठीक है, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम्म तो सबसे पहली चीज है कि आप पहले बच्चे को आप ये सब मत बताओ कि भैया कि तुझे संभालना है, तुझे ये करना है, तुझे, उसको वो बड़े का रोल मत दो, वो नहीं संभाल पाएगा। अब बच्चा क्या करता है बचपन में, कभी बच्चे को देखा है, जैसे 6-7 महीने के बच्चे को गोदी में तुम लोगों ने पकड़ा होगा, हाँ और अचानक से हम लोग पागलों की तरह हंसते हैं बच्चे के सामने, और वो कितनी तेज हंसता है, करेक्ट। हाँ वो इमोशंस और समझ जैसे रहा भी है। तुम बिहेव करोगे वैसे हाँ, बिहेव करेगा हाँ, बच्चा। जैसे हाँ ही उसको बोलोगे नो, तो अचानक उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, हाँ उसका लॉजिक नहीं है। बहुत मन करता है मेरा जो 6-7 महीने के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में घुस जाऊं। हाँ ना, हाँ, क्या want to सोच see रहे हो, what is क्या such. समझ आ रहा है। यार वो बिना फिल्टर के है ना, हाँ उनको पता नहीं कि उनको प्रोसेस कुछ कैसे उनको कर वो रहे हैं, मास्क भी नहीं नहीं पता लगाना। अभी, हाँ। ना उन पे मास्क ही नहीं नहीं है है। हाँ, उनको, नहीं है है। ना। हाँ तो फिर पता चला कि जो वो पैटर्न था ना, और हाँ। जो वो मेरे दिमाग में उस टाइम भर दिया था, तू बड़ी है, तू कर सकती, तो फिक्स वो ही चीज रिपीट हो रही है, और वो मैंने ना अपने अंदर एम्बेड कर ली है। ओके। अब मुझे लगता है कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी इस कुल्ली पे है, हाँ तो अगर कोई परेशान हो, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज हाउ इट वर्क्स। समझ रहे हो कैसे समझ आपकी रही हूँ। पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। हाँ तो जैसे कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ बच्चों को देखा होगा आपने कि बोलने से डरते हैं, हाँ इतने Confidence ओपनली नहीं नहीं है। बोलते। हाँ है ना? या फिर कई बहुत बोलते हैं, हाँ, उनका भी प्रॉब्लम होती है। दे वो समथिंग भी इन देयर होता माइंड। है, हाँ उनको बचपन में चुप कराया जाता है। हाँ वो चुप ही नहीं करेंगे एकदम से। जब कोई मिल गया तो दे लाइक दे नॉट गोइंग टू स्टॉप। और जब उनके घर में कुछ है, यू फील इट। ऐसा नहीं होता, किसी को भी मिलके तुम्हें थोड़ा सा फील होती है कि देयर इज सम इशू। ये चुप क्यों नहीं कर रही यार, बिना बात के लगे हुए हैं। या फिर कोई बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बस ठीक है शायद नमस्ते हो गया, तो देयर इज समथिंग वही ऑलवेज आई देयर। थिंक अगेन डिपेंड करता है ना कि आपको घर में कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है। यस If you express freely at home, then you are, extrovert, vocal, Correct. out and about. हाँ But if you are like, your parents would always say, no, keep quiet. हाँ Hmm. Don't say that. Don't do that. मत बोलो. तो वो आपकी Correct. पर्सनालिटी में आउटसाइड भी रिफ्लेक्ट करता है. Hmm. You become introvert and you'll Correct. always hide your expression, Expressions. emotions. Hmm. You will never voice out. And I think ये बहुत इम्पैक्ट करता है गर्ल्स में. हाँ. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जब शादी होती है ना, तो बहुत चीजें सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आता है, और एक इनिशियली लड़कियों को एडजस्ट करने में डेफिनेटली डिफिकल्टी Time होती है. लगता नया घर, नए लोग, मुश्किल होता है. अगर वही शुरू से ऐसी लड़की हो जिसको अपने घर से फ्रीडम दी गई हो एक्सप्रेस करने की, तो वो नए घर में भी जाके कुछ बता गलत देगी. लगेगा करेगी, वो हाँ. शुरू से बोलेगी. Correct. एंड आई थिंक उससे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है एज कम्पेयर टू क्वाइटर और हाँ. चुपचाप बर्दाश्त करते जाओ, सहते जाओ. एंड में तो ब्लास्ट होगा ना, बेबी कहाँ जाएगा. तो आई थिंक दैट्स वेयर दैट आल्सो कम्स फ्रॉम कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन योर चाइल्ड इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स Correct. एट होम. करेक्ट. ओके. और दूसरा एक और चीज तुमने देखा होगा कि कुछ लोग ना पीपल प्लीजर होते हैं. Oh, yes. एक validation बहुत सारे चाहिए होते हैं, होती है कुछ नहीं ना, होते. बहुत हाँ ज्यादा कि बस कोई बोल दे कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यार तू कितनी अच्छी है यार, सबको गिफ्ट फैल देती जाएंगे है नीचे. ना. हाँ ऐसे उनको ना एक हाई मिलता है जब उनको बोलता है ना, यार तू कितनी अच्छी, कितनी सुंदर लग रही है तू. कितने लोग ऐसे बोलते हैं, बेशक हम शिटी लग रहे होते हैं, हाँ तो हाँ बोलता है यार तू तो बहुत सुंदर है ना. हाँ.
तो ये जो पीपल प्लीजिंग वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, और जो वैलिडेशन का है, इन बच्चों को भी ना, मतलब जब ये बड़े होते हैं, इन बच्चों को भी ना वो वैलिडेशन माँ बाप से नहीं मिली होती। वो अच्छा। भी ना सीक आउट कर रहे होते हैं कि कोई तो बोल दे कि यू आर कोई तो वर्थ बोल दे। समथिंग, कोई हाँ। तो बोल दे। क्योंकि जो हमारी अनमेट नीड्स बचपन में पूरी नहीं होती ना, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, वो जिंदगी भर हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि And कोई तो दे दे, कोई तो दे दे वो चीज। हाँ, नहीं, आई कैन रिलेट इट एक्चुअली, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। हम्म। तो ये पैटर्न्स होते हैं। हाँ, यू फॉलो देम ना, कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होता है जो तुमने बचपन में या तो मिस आउट किया है, उसका हाँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें चाहिए वो बड़े होके। अब मुझे चाहिए, हाँ। हाँ, अब मुझे चाहिए। बट मतलब बहुत ज्यादा डीप है ये, बहुत ही ज्यादा डीप है। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ना, जैसे मेरे को लगता है, कम्युनिकेट करना बच्चों के साथ इस सबसे ज्यादा So इम्पोर्टेंट। Monica, like parents, ठीक है, parents main है role, I understand. But what about the society or your other people around you in your family or your friends? They must have some kind of role for kids as well. यार मुझे लगता है कि देख, एक बच्चे को ना एक इमोशनली प्रेजेंट माँ बाप चाहिए होते हैं, Yep. या पेरेंट चाहिए होता है, बोल सकती है, जरूरी नहीं है दोनों, एक तो एक चाहिए। भी चलेगा। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है ना, उनको कोई मतलब नहीं है। तो तू समझ रही है, ये घर है, ये छत्र छाया, अगर उनको यहाँ पे सेफ नहीं लगेगा ना, तो वो बिखर जाएंगे। तो दैट्स व्हाट दे नीड, जहाँ रह रहे हैं वो सेफ हो। So mainly they need that love language. लव से ज्यादा है कि इमोशनली अटैच्ड कोई हो घर पे। मतलब जैसे मैं कभी कभी देखती हूँ ना, बच्चा स्कूल जाता है, और बच्चा जब स्कूल से वापस आता है तो माँ बाप को बोलता है मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता अब। तो हम क्या बोलते हैं यूजुअली, माँ बाप, इंडियन पेरेंट्स क्या बोलते हैं? पढ़ना है बेटा। नहीं बेटा, जाना जरूरी जाना है। तो पड़ेगा ही। हाँ। हम भी जाते थे, हमारे हाँ, माँ बाप तो हमको रोज धक्के मार के हाँ। भेजते थे। क्यों नहीं जाना ये बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। है ना? नहीं मम्मी, मुझे जाना ही नहीं है, हाँ। जाना ही नहीं है मुझे स्कूल, मेरे को जाने का मन नहीं करता। आगे कुछ नहीं बता रहा है, बस मुझे जाने का मन नहीं करता। बट देन समथिंग इज नॉट राइट इन द स्कूल। करेक्ट। वो हम लोग नहीं सोचते हैं। वो पता है बच्चा क्या बोल रहा होता है उस टाइम, सीरियसली, जब बच्चा बोलता है ना मुझे स्कूल नहीं जाना, वो पता है क्या बोलता है? वो बोलता है मुझे हेल्प चाहिए। वो भीख मांग रहा होता है उस टाइम कि प्लीज मेरे को ना, उसको वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, उसको वर्ड समझ नहीं आ रहे। वो मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा ऐसी बातों से। हाँ, वो कहता है मुझे हेल्प चाहिए। और हम एज अ पेरेंट क्या करते हैं, हम उनको गुस्सा करते हैं। और सबसे जो गंदी बीमारी हम इंडियन पेरेंट्स में है ना, वो है, तुम्हें पता है मेरे पापा तो रोज थप्पड़ मार मार के मुझे भेजते थे, हम तो तब भी पढ़ते थे। और ऐसा अपने पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं ना, उसको समझ ही नहीं आता ये बोल क्या रहे हैं। अपना ट्रॉमा दे रहे हैं उसको। हाँ, और वो बेचारा सिर्फ एक हेल्प मांग रहा होता है कि भैया बात तो देयर इज अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। हाँ, मतलब तो बहुत डीप है, बहुत डीप है। और मतलब बच्चों को जैसे हम लोग डांट देते हैं या कुछ भी करते हैं ना, हम सोचते नहीं है, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन बेसिकली उन पे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तेरा ये ऑफिस अच्छा नहीं गया, या तेरा काम पे कुछ हो गया, तेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, बच्चों ने थोड़ा शोर किया, टीवी करा, बंद करोगे ये, कितना शोर करते हो। आई नो, फ्रस्ट्रेशन। तो जो नॉर्मल कपल्स हैं, लाइक जो नॉर्मल कपल्स है, वो तो ठीक चलते हैं अपने पेरेंट्स। आई अंडरस्टैंड जिन कपल्स में प्रॉब्लम चल रही है, तो उनकी ज्यादा दिक्कत होती है, जो सारे पेरेंट्स की तुमने, लाइक यू विद योर एक्सपीरियंस यू फेस दैट, कि बच्चों के आगे प्रॉब्लम्स आती हैं नेक्स्ट। देख, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो मुझे लगता है मोस्टली सबके घर में आती है। यार कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ ना, अब आज के टीनेजर बात ही नहीं करते। हाँ, जब मुझे उनसे तो आदत है बात उनकी निकलवाने language- के लिए यू हैव टू गो टू देयर लेवल। हाँ, पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ता है भाई, उनकी स्किबिडी language, पता नहीं हाँ। क्या क्या चल रहा है ये मार्केट में। अगर तुम 10 पे हो ना, you're on level 10, बच्चा तुम्हारा 20 पे है ना, तो you need to upskill your game to 100. I That's totally how it agree is. with you. Yeah. तेको पता है, मतलब सीरियसली हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग प्रमोशंस के पीछे भागते हैं ना, उसको साइड में रख दो। बट पेरेंटिंग में ना आपको रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। आप जब तक उनके लेवल पे नहीं आओगे ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। और इट इज नॉट अबाउट having a communication with them, it is about having it regularly, only for 10 minutes. मत पूछो कि स्कूल जो है तुमने कितने नंबर लिए, तुम्हारे ट्यूशन में इतने कम क्यों आए, तुम क्या बनोगे, मत पूछो ये सब। अपना फोन साइड में रखो, उनका फोन साइड में रखो, उनको बोलो let's have a chat, गप्पे मारते हैं। let's have a chat I about tell you. anything. How was your day today? Simple question. कैसा था दिन, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? मैं बताती हूँ इसके लिए। 4:30 आता है मेरा बेटा ना, स्टेशन से उसको लेके आना होता है मुझे। कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो,
मैंने कहा मैं जा रही हूँ मेरा बच्चा पिक करना है, क्योंकि वो 10 मिनट में जो मुझे ब्रेन डंप मिलता है ना, हाँ, और वो मैं लेती रह जाऊँ, वो मिलेगी नहीं। परफेक्ट टाइमिंग होती है इनसे हाँ, सारी निकालने की, एग्जैक्टली। क्योंकि उनको भी ना कुछ बोलने को चाहिए होता है। हाँ करेक्ट। तो अगर तुम उस टाइम अपने फोन में या कहीं और घुस गए तो गया, वो मौका होता है, यू आर गुड, यू टेकिंग दैट मौका दैट टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग फोन पे होते हैं ना, तो जैसे मान लो मैं फोन पे हूँ और मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है मम्मा मम्मा मम्मा, आपके साथ भी होता होगा, और अभी अभी रुक जा, अभी मेरी फ्रेंड का फोन है, मेरे को इससे बात करनी, तब मैं बात करती हूँ, तो बोलता रहता है पीछे से, मम्मा एक बार सुन लो मम्मा, कैन यू प्लीज लिसन टू मी। हम फिर कहते हैं बोला ना 10 मिनट बाद आना, आई एम ऑन कॉल राइट नाउ। इवन विद मीटिंग्स में भी ऐसे ही होता है कि आई एम इन अ मीटिंग, ठीक है। तो बच्चा पता है उस टाइम क्या लगता है, जब ये बिहेवियर हमारा बार बार बच्चे को दिखता है ना, उसको लगता है वो निगलेक्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स उसकी प्रायोरिटी नहीं है, समझ रही है। और उसके बाद जब वही चीज उसकी पर्सनालिटी बनती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कभी किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे हर इंसान ने निगलेक्ट कर दिया। समझ रही है? लोनलीनेस फील समझ होती रही है है? उनको ना। और फिर उसको हर इंसान में वही दिखता है कि अब अगर मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, कहीं ये मुझे निगलेक्ट ना कर दे, डर बैठ गया उसके अंदर, क्योंकि उसने बचपन में देखा है थोड़ी देर बाद आना, थोड़ी देर बाद आना। तो बहुत ज्यादा गहरा है ये, और मैं सच्ची बता रही हूँ, बच्चों से ऊपर कोई भी नहीं है। ऑफ कोर्स मतलब ही नहीं है। अगर मतलब सच में नहीं संभाल सकते हो तो प्लीज पैदा मत करो, और अगर सही कह पैदा रही है, किए हैं ना तो जस्ट दे आर फोकस योर ऑन देम। रिस्पांसिबिलिटी। मतलब तू सोच कि मैं तेरे को एक मिट्टी दे रही हूँ, एक क्ले दे दिया, तुम दोनों को दिया मैंने, और तुझे मैंने बोला कि इसको ना कुछ अच्छा बना, कोई अच्छी आकृति बना, हाँ। तुझे भी बोला। अभी तेरा दिमाग क्या उसको बनाएगा या तेरा दिमाग क्या बनाएगा मुझे नहीं पता। अभी इसने कुछ बहुत बढ़िया बना लिया और इसने कुछ शिटी ठीक बना ठाक लिया, बना शिटी दिया, सा हाँ। बना लिया, ठीक है। अब मैं जो हूँ वो दोनों देख रही हूँ, कंपेयर भी कर रही हूँ, और मैं तुझे बोल रही हूँ कि यार ये क्या बना दिया तूने, शिटी एकदम। तो कह रही यार मैंने नहीं ऐसा बनाया, ये तो मिट्टी खराब थी, ये तो बेकार मिट्टी थी, पानी ज्यादा डल गया, ब्लेम उस चीज पे डाल दिया। मिट्टी दोनों की सेम है, मिट्टी दोनों की सेम है, बट मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्या बना दिया है, और तो बार बार ब्लेम डाल रही है इस पे कि यार ये तो ऐसे ही था, ये तो वैसे ही था। एक मिनट, आकृति तूने बनाई है, तो मिट्टी खराब कैसे हो सकती है? मिट्टी तो सेम मिट्टी थी दोनों की। करेक्ट, ये तो रॉ था, और इसको शेप करना तो तेरी जिम्मेदारी थी, तो इसकी कैसे ठीक बन गई और तेरी बेकार कैसे बन गई? बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट। करेक्ट, एक्चुअली ट्रू। तो जो वो फिर पेरेंट्स आपस में ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, तेरे जीन्स गए हैं, तेरी फैमिली में ऐसे होता था, वो इश्यूज आते हैं आपको, कभी फेस करते हो वो चीज पे बच्चों के लिए? ऐसे बोलते हैं ना कि तेरी वजह से ऐसा हो हाँ, गया, तेरी वजह से, यू डिडंट टीच दिस, हाँ, माँ है तू, जब तू पापा है तूने किया नहीं ये चीज। मजे की बात तो मैं ना तुम्हें हंसाती हूँ, हाँ। मुझे पता है तुम्हारी आंखों में ना टीयर्स हैं, आई कैन सी इट, सो डोंट क्राई। मैं तुम दोनों को हंसाती हूँ, बहुत ज्यादा वो हो गया इमोशनल। हाँ। जैसे मेरे पेरेंट्स को ही लो, तो जैसे मैं कुछ बहुत अच्छा काम करती हूँ तो मम्मी कहती है देखो पता है मेरे संस्कार हैं। हाँ आई नो, ठीक है, समझ रहे तुम लोग? हाँ, टिपिकल, मैं खुद ऐसा करती हूँ। अच्छा, मेरे पापा से बात करो तो कहते हैं ये मेरे संस्कार हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं अगर कुछ गलत कर दूं, मेरे संस्कार तो ऐसे नहीं थे। हाँ, तो समझ रही है? हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं एक अलग लेवल पे हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है मेरी बहन से। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, माँ बाप एक है, हाँ। थॉट प्रोसेस अलग कैसे हो गया? हाँ, सारे एक्चुअली अगर जीन सेम है, हाँ, तो सारे भाई बहन कैसे अलग अलग होते हैं? अलग कैसे हो गए यार? हाँ। वो अलग, मैं अलग, जीन्स तो सेम है ना। हाँ। तो जो ये ब्लेम गेम का काम करते हैं ना हम, कि तुम्हारे से आया, अरे तुम दोनों से आया तो सब पे आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि मेरे को 50 दे दिया, उसको 40 दे दिया, उसको 50 दे दिया, मेरे को 40 दे दिया। सही कह रही है, हाँ। तो ये ब्लेम गेम जो ये करते रहते हैं ना, ये आपस की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, और बच्चा एक रीजन होता है, तेरी वजह से ऐसा, तेरी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक वो आपस का जो रिलेशनशिप का टेंशन है ना, तो वो उसका इम्पैक्ट 100% बच्चे पे जा रहा होता है। और जैसे वही तुमने बोला ना कि देखो पेरेंट्स हैं, मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग से बहुत फर्क पड़ता है, बट आई बिलीव कि जैसे बच्चा भी स्कूल जा रहा है या उसके जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अगर घर में इमोशनली अवेलेबल नहीं है लोग उसके लिए, he'll seek that emotional support outside, right? And that outside starts from their friends, correct? तो आई बिलीव उनका भी बहुत बड़ा रोल बन जाता है
एज वी ग्रो अप, और Right. हम सिबलिंग्स हैं जैसे, हम्म हम सिबलिंग्स के भी हमारी पढ़ाई जैसे हमने की और हमारे जो फ्रेंड्स हुए उनका इम्पैक्ट Correct, हमारे बहुत ऊपर बहुत पड़ता मेक है. अस रियली डिफरेंट, Correct. एंड डेफिनेटली हमारे लाइफ के चैलेंजेस, हमारे अपने गोल्स सो that अगर make people पेरेंट्स के different. जैसे एज शी सेड चैलेंजेस हैं, तो उस टाइम ऐसे क्या बेटर कम्युनिकेट करें पेरेंट्स, जो लाइक अगर पेरेंट्स ट्रिगर है, परेशान है, चैलेंजेस में है, हाउ डू दे कम्युनिकेट विद किड्स दैट टाइम कि थिंग्स गोज बेटर? देख, सबसे पहले तो पेरेंट्स जब लड़ाई करते हैं ना आपस में एक छत के नीचे, और हम्म। बच्चा बेचारा वहाँ कोने में बैठा होता है, हम्म सबसे पहले तो इसको बंद करो. जी ठीक है, क्योंकि वो उन बेचारों को पता ही नहीं लड़ाई किस बात पे हो रही है, उनको हाँ. समझ ही नहीं आ रहा, बस उसको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों लड़ रहे हैं. कुछ हो रहा है. ठीक हाँ. है. हाँ. अब मैं तुम्हें एक बहुत डीप बात बताती हूँ यहाँ पे, अभी रोना मत तुम लोग. हम्म और बच्चा पता है क्या सोचता है? वो सोचता है शायद रीजन मैं हूँ. Can you beat it? हम्म, बच्चा सोचता है कि शायद मेरी वजह से दोनों लड़ रहे हैं, ओके. सही. बट उसकी वजह से कुछ लड़ नहीं रहे होते, ये आपस में लड़ रहे होते हैं. ठीक है. उसके बाद लेट्स सपोज कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनका आपस में टेंशन चल रहा होता है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे होते हैं. हाँ. बेटा, पापा को बोलना जरा खाना खाएंगे. हाँ, सही silent. कह रही है. हाँ, समझ रहे हो? साइलेंट इज Silent. मम्मी ठीक है. बोलती है बेटा पापा को बोलना कल स्कूल कितने बजे छोड़ेंगे. हाँ. बच्चे को सब समझ में आ रहा है यार, बच्चा आपका टोन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन सब समझ रहा है. सब समझता है. अब बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी साइलेंस क्यों हो गई, हम्म इतना सन्नाटा क्यों है. हम्म तो बच्चा ना उसमें भी ना कंफर्ट फील नहीं करता, सोचता रहता है क्या हो गया. Of course. और मतलब हमको लगता है कि यार जैसे तुम लोग भी सोचते होगे कि जैसे तुम लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा आईपैड पे हाँ. मस्त है यार, जिंदगी तो मस्त चल रही है उसकी, वो हाँ. तो अपना लगा होगा. भैया वो सब ऑब्जर्व करता सब पता, उनके कान चल रहे होते हैं हाँ. भाई. सब कुछ, बॉडी एक्सप्रेशन, तू हम्म हंस रही है तो क्यों हंस रही है, तू रो रही है तो क्यों रो रही है, तो उनको सब पता है हर जगह. जितना हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते ना भैया, नेक्स्ट लेवल ऑब्जर्व हाँ, करते इनकी हैं तो बच्चे. सेंसेस ज्यादा एक्टिव होते हैं यार. हाँ. आई टोटली बिलीव दैट. Correct. या हाँ. फिर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जब इतना प्रेशर बच्चे में आता है, स्पेशली देख मैं तेरे को बताऊंगी, लाइक 12 साल तक हम्म पकड़ के रखो उन्हें. बिकॉज क्या होता है कि अब जब वो इतना टेंशन देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब वो बोल नहीं पा रहे हैं. अब सबसे बड़ी बात है, अगर माँ के पास जाएंगे, मम्मा क्या हुआ, माँ बोलेगी तुमसे कोई मतलब नहीं है, निकलो यहाँ से. वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है. बाप के पास जाएंगे, वो भी यही बोलेगा कि आई डोंट वांट यू टू कम इन बिटवीन, जस्ट गो अवे, है ना, ऐसे बोलते मम्मा हैं से ना, बात कर लो. मम्मा हाँ. से बात कर लो. ठीक है. अभी बच्चा वापस चला गया, अब क्या करता है बच्चा, अब वो एक्सप्रेस कैसे करेगा अपने इमोशंस. अब वो बोल तो सकता नहीं है, मुझे आके बिठाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ रिलेशनशिप कैसे करो, मत छोड़ो एक दूसरे को, वो तो बोल नहीं सकता. अब वो टैंट्रम शुरू करेगा, बिहेवियर दिखाएगा, या फिर पेन, हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर वो आएगा क्या वहाँ. करेगा, या तो उसको एंजाइटी होने लग जाएगी, जो आपको पता भी नहीं चलेगी. जैसे कि सबसे बड़ा साइन है, रात को सोएगा नहीं. ठीक है. और एक ही बात बार बार रिपीट करेगा. ठीक है. स्कूल जाने से मना कर देगा, और हर बात पे इरिटेट होना, लड़ाई करना, मानना नहीं, जिद्दी एक नंबर. जैसे हम पुराने जमाने में जब हम लोग छोटे थे कहते ना कि तो बदतमीज बच्चा है, तो हर खाना बात नहीं पे जिद खाना. करता है, खाना ही नहीं खाना. ऐसे ऐसे ना वो साइन शो करेगा कि मतलब मैं जूझ रहा हूँ, समझो मुझे, समझो मुझे. या फिर सबसे बड़ा चुप हो जाएगा. तो ऐसे साइन जब पेरेंट्स देखे, तो वे देखो, लाइक इफ दैट पेरेंट्स हैव बिट ऑफ अवेयरनेस कि द चाइल्ड नीड हेल्प एंड दे कांट हेल्प देमसेल्फ, इज देयर एनी वे दे कैन डू एक समथिंग? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आपके पास बच्चा है, वो ऐसे टैंट्रम्स कर रहा है, सबसे पहले ये सोचो कि आप क्या गलत कर रहे हो. यू नीड टू बी, समथिंग इज हैपनिंग इन होम ना, समथिंग इज हैपनिंग विद इन योरसेल्फ. होम छोड़ दो, you need to be very self aware of yourself, about your patterns path, about your emotional needs, about everything about yourself. क्योंकि वो तुमको मैंने बताया वो मिट्टी है, वो तो हमने बनाई है. तुम 40-45 साल के हो इंसान, पहले अपने आप को ठीक करो. देख सबसे बड़ा चैलेंज आता है गुस्सा. पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, कुछ तो सामान फेंकना शुरू कर देते हैं. मतलब तू समझ रही है किस एंड तक हम जाते हैं एज अ पेरेंट, है ना, किस एंड तक जाते हैं. I know. और कोई समझ ही नहीं रहा, वो छोटा बच्चा बेचारा, मतलब क्या देख रहा है वो, मतलब वो आया क्यों इस दुनिया में, सब देखने. तो सबसे पहले देख हमें अपने आप को ना ठीक करना पड़ेगा. अपना गुस्सा, अपनी ईगो, जो भी हमारे दिमाग में कूड़ा बहुत सारा फाइल्स भरी हुई है, उनको पहले जो है रिस्टार्ट करो, डिलीट मारो, रीबूट जैसे हम कंप्यूटर करते हैं ना, मोबाइल अपग्रेड करते हैं, प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ.
और उसके बाद फिर उनको समझो, और उसके बाद भी आपको लगता है कि चीज़ें हाथ से जा रही हैं तो प्लीज़ हेल्प लो। Going back to the point where we were talking about, when parents are going through a rough patch, so बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपस में भी बोलते हैं, और आई थिंक ये हाँ। बच्चे भी सुनते हैं करेक्ट। कि मैं तो तुम्हें कब का छोड़ देती, हाँ, ठीक है, बस तुम नहीं होते, तुम्हारे चक्कर में मैं बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही हूँ, राइट? सब बोलते हैं। पर आई थिंक बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी वो ड्यू जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं इस चीज में, तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि साथ रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हाउ डज इट इम्पैक्ट किड्स? देख, मुझे तो ये लगता है कि एक बार हाथ पकड़ लिया है तो प्लीज उसके लिए कुछ काम करो। छोड़ना बहुत आसान है ना? बट आई थिंक छोड़ना दिखता है बहुत आसान है, पर होता नहीं है। होता नहीं है। और Correct, यार हाँ। मिलके, अच्छा इकट्ठे रह के भी रोज के क्लेश या नो कम्युनिकेशन, बच्चे को तुम परेशान कर रहे हो, डू यू थिंक दैट वो पेरेंटिंग बहुत इज बेटर गुड है। एज नो, वेल? इट इज नॉट। बेटर नहीं है कि तुम निकलो उससे? हाँ, हमेशा बेटर है कि आप निकलो। क्योंकि देख, बच्चे को ना दोनों पेरेंट्स नहीं चाहिए, उसको सिर्फ वो पेरेंट चाहिए जो उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो, इमोशनली प्रेजेंट हो। अभी वो उसका फादर है या उसकी मदर है, उसको कोई मतलब नहीं है, या दोनों साथ में है। आई थिंक देखो, चाहिए तो दोनों, क्योंकि मदर का रोल मदर है, फादर का फादर है, मुझे बट आई थिंक दोनों ना होने से अच्छा एक ढंग से मिल हाँ, जाए वो correct, बढ़िया एक बढ़िया है ना? अभी मैं तुमको एग्जांपल के साथ बोलती हूँ। जैसे एक घर है, उसमें हस्बैंड वाइफ है, दोनों लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह रोज लड़ रहे हैं, रोज टेंशन हो रही है ना। थोड़ा मैंने सोचा हंसा भी दूं तुम लोगों को। सॉरी, मैं कहती हूँ कुत्ते बिल्ली, टॉम एंड जेरी ज्यादा नहीं लड़ते? कुत्ते बिल्ली का एग्जांपल क्यों लिया जाता है? कोई मुझे ये बता हमारे दे। देसियों में आता है वो, टॉम एंड जेरी आता है चलो इंग्लिश में। टॉम एंड जेरी यूज कर लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं यार, जो आपको अच्छा लगे आप यूज करो, ऐसे जस्ट अ वाइट थॉट। ठीक है, तो थोड़े हमारे आंसू दोनों लड़ रहे हैं, रोज लड़ाइयाँ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब बच्चा जो है वो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत ही वियर्ड एक्ट करेगा, अजीब सा बिहेव करेगा, मानेगा नहीं, ऐसे उसके अंदर अलग अलग सिम्टम्स आएंगे। अभी दूसरा बच्चा है, वो तो चुप हो जाएगा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है? ऐसे माँ बाप से पूछो ये तुम्हारा बच्चा बोलता क्यों नहीं? अरे ये तो ऐसा ही है, शाय है, ये थोड़ा शाय है, सबसे बात नहीं करता, ठीक है? घर पे तो बहुत बोलता है। एक सेकेंड, ना बोलने में और सैड दिखने में ना बहुत फर्क होता है, समझ आई रही हैं? अंडरस्टैंड, या ठीक है, अगर आप नहीं बोल रहे हो बट यू आर स्टिल यू आर लुकिंग फाइन, यू लुकिंग हैप्पी, उसमें और ना बोल के जो तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है ना, उसमें बहुत फर्क है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा बोल नहीं रहा, इट्स ओके, पर बच्चे की शक्ल तो देखो कि वो हंस भी नहीं रहा है, उसने हंसना छोड़ दिया है, ठीक है? तो रोज लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बच्चे के ऊपर बीत रही है। माँ कह रही है अपनी माँ को फोन के, मम्मी मैं तो बहुत झेल रही हूँ, ये आदमी ने मुझे पागल कर रखा है। लड़का अपनी माँ को फोन करता है, मम्मी मैं तो परेशान हो चुका हूँ इससे। एक सेकंड बच्चे के बारे में देख लो एक बार, उसकी भी शक्ल देख लो एक वो बार। किसको फोन करे? वो किसको फोन करेगा? उसके तो जो फोन करने वाले बगल में बैठे हुए हैं, जो उससे बात भी नहीं कर ओह रहे माय हैं। गॉड, कैन यू इमेजिन? सो यार कितना डीप बात है ये, हाँ, कि उसके पास तो वो सपोर्ट सिस्टम भी नहीं सामने है। पड़ा है। हाँ, जो सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स यूज कर रहे हैं कि दे हैव देयर पेरेंट्स, देयर सिबलिंग, देयर एवरीबॉडी, बट दैट किड डजंट हैव एनीबॉडी, कोई है ही नहीं है जिससे वो बात कर लेगा। तो मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि देख, अगर तुमने रिश्ता बनाया तो प्लीज उसको छोड़ो मत, वर्कआउट करो। कितने सारे काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, कितने सारे हैं, बहुत सेल्फ पैसा पड़ी है यार, निकालो और जाओ, इसमें कोई शर्म नहीं है। कोई इफ यू आर शर्म गोइंग नहीं फॉर है। कपल काउंसलिंग, कोई शर्म नहीं है। हाँ, बी वोकल अबाउट इट, ठीक टॉक है? अबाउट इट। हाँ, तो जैसे देख कभी कभी हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, किडनी में प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, हाँ। घुटनों की प्रॉब्लम, व्हाटएवर, हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास ट्रू, रिपेयर कराने, मेंटेनेंस कराने, ठीक है? उसी तरह इसकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और ये आप खुद नहीं कर सकते हो। 100% आई एग्री। इसके लिए यू नीड समवन। हाँ, और वही है कि देखो, हम जहाँ से आते हैं वहां पर ये सब चीजें ये एग्जिस्ट टैबू नहीं है, करते। टैबू है। हाँ, वो कहेंगे क्यों, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, साइकोलॉजिस्ट नहीं के नहीं, पास जा तो रहे हो, मैंने पागल थेरेपिस्ट कह जा रही रहे है, हो? हाँ, मुझे लगता है मैं पागल हूँ, साइको। इसलिए मैं जाऊंगा हाँ, इधर, है ना? साइको हाँ, है ना? तो उनको, ये टैबू पर यहाँ पे तो मुझे लगता है फिर भी बहुत अवेयरनेस है यार, मुझे पता नहीं क्यों है, मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइक फॉर गुड्स सेक इफ एनीथिंग हैपेंस आई विल टेक हेल्प। नहीं, मुझे पता है क्या लगता है, देखो डिफरेंस क्या है हमारे यहाँ पर।
अभी लोग थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर के पास क्यों जाते हैं? वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और वहां से उनको एक अनबायस्ड सॉलिसिटेड नॉन एडवाइस जजमेंटल, मिलती है, हाँ ठीक है, जिसको वो फॉलो करते हैं। अच्छा, हम बैक इन आवर कंट्री व्हाट हैपेंस कि ऐसा नहीं है कि लोग अपनी बात शेयर ही नहीं कर सकते। देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम, यू नो, लोग हमेशा से अपने Correct. पेरेंट्स से But बात then करते हैं, again, there is a सिबलिंग्स, conflict of फ्रेंड, interest as ऑफ well. कोर्स। तो प्रॉब्लम वहां पर है कि वहां पर जो एडवाइस आती है वो बायस्ड आती है, Hmm. ठीक है। बेटी अपनी मम्मा को बताए तो मम्मा तो यही बोलेगी मेरी बच्ची हाय, मेरी तू बेटी ठीक तो है, तू ठीक है, तू ठीक है, उसको ठीक करना पड़ेगा, हाँ। है ना। तो आई थिंक उसकी वो माँ ने गलत कुछ है सिखाया हमारे नहीं यहाँ उसको। पे। हाँ, एडवाइस देते हैं लोग बट बायस्ड होती है। ठीक है। अब बच्चों के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चे को अजीबो गरीब सपने आ रहे हैं रात को, बच्चा सो नहीं पा रहा, बच्चा बैठा है शेक कर रहा है, आप ये वाली टेंट्रम्स, यू नो, यू ये नो दिस वन पैडिंग हाँ। करते रहते हैं। आप उसको नॉर्मल लेते हो, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। आप अपनी मम्मी को जाके बताओगे, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है काफी ओल्ड है, बोलेगी अरे हमारे भी, तू भी ऐसी ही करती थी, हाँ, होते हैं ना। वो हर चीज हम पे ही आ जाती है। हाँ, तो तुम्हें because डिफेक्टिव होती, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पता ही बच्चे नहीं में तुमने मुझे प्रॉब्लम कितना तंग करा है हाँ। बचपन में, तुम हाँ। सोच ही नहीं सकते मैं तुमको पाला कैसे है। तुम्हें पता है हमारे पास तो पैसे भी नहीं होते थे, उसके बाद हम 4-4 बच्चों को पालते थे। तो तू ज्यादा सोच रही है, समझ रही है। सही बात तो है। जैसे ही उसकी मॉम या डैड ने उसको वो एडवाइस दी, वहीं पे वो जो काउंसलिंग वाला डोर है ना, उन्होंने बंद कर दिया, समझ रही है। फिर दूसरा क्या होता है हमारा परसेप्शन, कि अगर हम काउंसलर के पास जाएंगे ना तो बात फैल जाएगी मार्केट में, और फिर लोग कहीं ये ना बोलें कि हमारा बच्चा यू नो इसमें कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली लड़कियों के साथ, फिर इसको लड़का नहीं मिलेगा। हम लोगों ने बात कर ली, सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं, और ये बहुत सब लोगों को दिखता है, प्रॉब्लम्स पता है। कुड वी टॉक अबाउट द सोल्यूशन प्लीज, कि सोल्यूशन क्या है इस चीज का? एग्जैक्टली। देख, सोल्यूशन बताने से पहले ना मैं एक फ्रेमवर्क की बात करती हूँ तुझसे, ठीक है। शायद तुम लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज यू गाइज आर आल्सो वर्किंग। तो एक ना रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है, एक फ्रेमवर्क, ठीक है। उसमें क्या हमको सिखाते हैं, लाइक इवन इन जॉब्स हमें सिखाते हैं कि भैया पहले पोटेंशियल रिस्क देखो, ठीक है, और अगर पोटेंशियल रिस्क है तो उस पर बात करो कि क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर कोई रिस्क तुम्हें दिखा, सबसे पहले बताओ रूट कॉज क्या है। वी टॉक अबाउट द रूट कॉज कि क्यों हुआ वो रिस्क, ठीक है। रूट कॉज के बाद हम जो है रिमीडिएशन प्लान बनाते हैं। चलो, रिमीडिएशन इज योर सोल्यूशन, कि यू नो क्या कर सकते हैं, ठीक है, और उसको गोल बनाते हैं। ओके, हम गोल बनाते हैं कि मतलब 30 दिन में या 60 दिन में हम उसको फिक्स कर देंगे, करेक्ट। उसके बाद फिर हम कंट्रोल्स बिठाते हैं। कंट्रोल्स मतलब कि क्या कंट्रोल रख सकते हैं ताकि ये चीज रिस्क दोबारा रेज ना हो, समझ गए। इसी तरह पेरेंटिंग में भी क्या होता है, आपको रिस्क दिखा, चाहे वो पोटेंशियल रिस्क है चाहे वो एक्चुअल रिस्क है, आपको दिखा, जो तूने अभी बताया कि बच्चे टैप करते हैं या कुछ भी, रिस्क दिखा आपको, बैठो मत, मतलब ये मत सोचो कि मतलब इट्स नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल। आजकल दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, तुम्हें पता है एआई आ गया, चैट जीपीटी, कोपायलट, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर की कम ऑन, पुट अ क्वेरी, व्हाई माय किड इज बिहेविंग लाइक दिस। आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको शर्म आती है, आप गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। गूगल माता बैठी है ना, गूगल माता, चैट जीपीटी, कोपायलट, सिरी दीदी, कितने हाँ, बैठे हैं, कितने बैठे हैं, भी पूछ लो कि सही बात है। मेरा बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इज इट नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। अब गूगल वगैरह पे हम डालते हैं कि सर दर्द हो रहा है तो कैंसर हो गया, ये तो हो सकता है ये आ जाए कि इट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। बात करो अपने बच्चे से, कम्युनिकेट करो, उससे पूछो कि भैया व्हाट इज बॉदरिंग यू। पहली बार बच्चा कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं। आपको ना पेशेंस रखनी पड़ेगी, पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको रोज बात करनी पड़ेगी, जो बच्चे को पसंद है पहले उसके साथ स्टार्ट करो। हाँ, तो पेशेंस में ऐसा है कि यू नो ये नहीं कि ये चीज एक दिन में तो हुई नहीं, इट हैज टेकन टाइम, तो गिव योरसेल्फ अ टाइम कि उसको फैमिली को दोबारा रीजुनाइट करना, ठीक करना, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, कि बच्चा ठीक फील करे। तो बाहर ले जाओ, यू नो, रेगुलर कैचअप्स करो उससे, पूछो क्या हो रहा है, थोड़ी ट्रैवल करो, मुझे लगता है ट्रैवल करो, दैट्स द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद फैमिली, ये ट्रैवलिंग बेस्ट वे टू कनेक्ट विद फैमिली। आई नो, मतलब और प्लीज आईपैड मत लेके जाना, आईपैड मत लेके जाना, आईपैड मत लेके जाना। ट्रैवल करो, रेगुलर चेक-इन्स करो, कम्युनिकेट करो, मतलब उसको ये दिखाओ कि भैया मैं हूँ तेरे साथ, मतलब सब छोड़ दो यार, सब छोड़ दो, सब यही रह जाएगा, बच्चा है तो सब है, ऑफ कोर्स। तो उसको ये दिखाओ कि भैया हम हैं तेरे साथ, यू आर माय प्रायोरिटी और आई एम विद यू, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बच्चा जरूर फूटेगा,
है ना, बोलेगा वो। they'll come around because कहीं ना कहीं वो अटैच्ड हैं, हाँ, है ना, हाँ, वो अटैच तो हैं, उनको एक डिस्टेंस फील हो रहा था, अब जैसे जैसे तुम वो डिस्टेंस गैप फिल कर रहे हो, हाँ, they'll come they will closer to come. you, है ना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे नहीं आते तो क्या क्योंकि करें काफी फिर? दूर चले गए होते हैं क्योंकि भाई, उनको ट्रस्ट इश्यूज है पेरेंट्स, बहुत टाइम हो गया होता है। बताएंगे आपको हम्म। उनके दिल में कि आप कितना भी पूछ लो, हम्म, आप बेशक उनको कहीं भी हॉलीडेज पे ले जाओ, डिज्नी वर्ल्ड ले जाओ, कहीं भी कर लो, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा घाव हो चुका है ना कि दे डोंट जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स। वो बहुत बड़ा है। हाँ। मैसिव ट्रस्ट इशू है, ठीक है। हम्म, अब क्या करो, बच्चे को जिसके साथ फैमिली में ट्रस्ट है ना, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो दादी नानी कोई भी हो कोई सकता भी है, हो सकता है। उनको ये काम दो करने को। हम्म, और जब वो बात करेंगे या वो कनेक्ट करेंगे ना, क्योंकि उसको ऑलरेडी ट्रस्ट है वहाँ पे, दे डोंट हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट है वहाँ पे, तो वो वहाँ बोलेंगे। अभी अगेन वहाँ पे भी 2-3-4 महीने लग सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं, उनको पता ही नहीं वो इमोशंस जो है ना वो डाउनलोड करने कैसे, मतलब वो एक्सप्रेस कैसे करने हैं, तो उनको टाइम लगेगा क्योंकि उनको खुद नहीं पता वो क्या जूझ रहे हैं, वो आपको क्या बताएंगे, करेक्ट, ठीक है। अब ये सब अगर काम नहीं कर रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लीज कंसल्ट समवन, सीख हेल्प। किसी से हेल्प लो, और बहुत जरूरी है हेल्प लेना, करेक्ट, ठीक है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली कुछ नहीं कर पा रही है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, रोज मर रहे हो उनको देख देख के, बट कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ Correct. करो ना। इग्नोर मत करो बच्चे को, और मुझे डू समथिंग हाँ, अबाउट इट। और मुझे पता है क्या लगता है, देखो इस चीज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर किसी पेरेंट ने जाके बाहर बोल भी दिया ना कि मेरा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो लोग उसकी 10 बातें बना लेंगे, करेक्ट। करेक्ट, तो देखो सभी पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है, मोनिका बैठी है हमारे साथ, ठीक है, प्लीज रीच आउट टू हर, ठीक है, पर्सनल मैसेज करो, अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम शेयर करो, शील एडवाइज यू, शील गिव यू सम टिप्स टू हैंडल सिचुएशन एट योर प्लेस, और वी अंडरस्टैंड यू नो कि अपने ही बच्चे हैं यार, जब जागो तब सवेरा। और जो लोगों का तो क्या है, लोगों का काम है कहना, है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, करेक्ट, उनको करो छन्नी, हाँ, है ना, और अपने बच्चे को संभालो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यार सिंपल सी बात है, देख हम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, बट जब तुम्हारा बच्चा रोता है, जब वो टैंट्रम्स दिखाता है, जब वो जमीन पे लेट जाता है, तो तू मुझे बता कितने लोग आते हैं उसको उठाने, कितने लोग आते हैं उसके आंसू पोंछने। जब बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है और आप जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हो मिसिंग वाली, कितने लोग उस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं, बस इतना बता। लुक, एंड ऑफ द डे पेरेंटिंग इज वेरी पर्सनल थिंग, नो, तुमने खुद करनी है, बट जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम दिखे प्लीज रेज इट, हाँ, उसके बारे में बात करो, डिस्कस करो, बी वोकल अबाउट इट, दैट्स ओके, नोबडी गोइंग टू जज, इफ दे जजिंग इट, लेट इट बी, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट्स देयर प्रॉब्लम। तो don't be scared of anything, just be yourself, be with your kid, and that is the only advice I can give you. Correct. You know, it is like, तुम यकीन नहीं करोगे, ये एक चीज ऐसे मुट्ठी में आपके बंद है ना यार, उन्हीं के लिए सब कर रहे हैं, सब देखो कुछ यहाँ पे है, ठीक है। करेक्ट, हाँ, जिस दिन आपने इसको ढील दे दी, उस दिन खुद जिंदगी भर रो के ये बोलोगे कि काश क्या हमने कुछ संभाल लेती मैं, oh है ना, God. काश नहीं, हमने I'll कुछ किया definitely say कि I can see Monica will be coming back to us soon. Please let us know what we want to talk about it Exactly. next time, and what we want to explain more. Yeah. DM us, message us, message her, and Motivate then True. हम तो यहाँ बैठे हैं turn the table करने के लिए. Exactly. And I think if you also have some sort of value addition, just reach out. Sometimes बात करने से ही बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और यार वैसे भी बातें करना तो हमारा फेवरेट टाइम पास है, नहीं है? तो ये वाली बातें सही है ना? हाँ सही है, नहीं बोलो, बात करो, और कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज रीच आउट, बिकॉज किसी को रीच आउट करना इज नॉट अ वीकनेस, इट इज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू हैव। 100%. और जो मेंटल दिमाग है, इसकी भी रिपेयर होनी, सर्विस होनी बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा टेक अवे था आज के पॉडकास्ट में कि इसकी सर्विस होनी, स्टॉप करो और देन रीस्टार्ट करना है। हमारी लास्ट वाली लाइन बोलो क्या था? All right, like, share, subscribe, turn the tables. Thank you so much, guys. Ciao.